Janice, ask your friends to join. Yes, Janice, can you hear me? Janice. Yes, Janice. Janice, am I audible to Janice? Janice Chauhan. आपको होस्ट बना तो दिया। आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो बच्चे? ओके, हिमांशु। Yes, Himanshu, roll number 18 dear. यस सर, आपकी आवाज़ आ रही है। I'm making you host so you can share your screen with us. Okay, और अपनी पीपीटी आप शो कीजिए. I will help you. Okay. Yes, Himanshu. जी जी सर, वो पीपीटी खोलना सर। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है. करता हूँ सर उसको कुछ नहीं। सुन पा रहे हैं हिमांशु? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। Okay. माइक एडजस्ट करा था मैं। Okay, okay. Now you are audible. जो बच्चे जी आपके वेटिंग रूम में हो उनको अलाउ कर देना. एक बार जैनिस से पता कर लो, अगर वो चाहता है देना आपके साथ, देन यू कैन ज्वाइन विद देम. ओके. जी सर।
सर जनेश का मैसेज आया मेरे पास में, वो नहीं दे पाएगा। आप ठीक है, आप दीजिए। शेयर करिए अपनी स्क्रीन, शेयर योर पीपीटी। ओके। आपका टॉपिक क्या था? जॉब सर इवैल्यूएशन। जॉब, ओके, जी सर। ठीक है। जैसे कि सर मैंने, जहां तक हो चुका था वहां तक छोड़ दो, बाकी आगे कंटिन्यू करो। और यहाँ तक था ना शायद, एनालिटिकल नॉन एनालिटिकल था। जी सर। हाँ, ये वाला कर दो। So basically, job evaluation is of two types: non-analytical and analytical. हम्म। Non-analytical method consists of ranking method and classification method, ओके। under which the job is being designed, or it is being evaluated or put in a table according to their role. As sir, we can see that in a firm and in any organization there are various office boys and हम्म। engineer, clerk. So these two types of methods consist of the job whole itself. And ओके। moving on to beside analytical method, हम्म। those consist of factor comparison and point method, हम्म। under which the the description and the skills and the other tactics and other qualities that are being required in a candidate, यस। that are basically called as a elements of the job. हम्म। So the individual is being placed in the table हम्म। by virtue of these elements of job. ठीक। So firstly, coming to the ranking method, हम्म। it is one of the simplest method. Each job, each job is considered as a whole, as I have further discussed, हम्म। that the the job title is being given, uh, यस। and uh, and according to their job title the grade is also given, and their हम्म। payment and the salary is also being mentioned in such a form of table. हम्म। As you can see that there is a given table consisting of job title, grade and salary, that is in taka. गुड गुड। Uh, यस। as we can see that this is very simple and consists almost negligible amount of input of the capital and so on. हम्म। Besides this, the main disadvantage of this method is lacking the substantiating data हम्म। for later use in justifying relative position given certain jobs. ओके। Due to and due to this and due to this disadvantage, this this type of method cannot be used in a large firm or a large organization. हम्म। यस। Moving on to the classification method. हम्म। Classification method basically defines the values of the job, हम्म। people, or team with written standard for a hierarchy हम्म। classification. ओके। Uh, Besides this, the classification method also consists of the values that is being that an individual must have in in himself or herself to हम्म। play the role. हम्म। And these values are being mentioned by the tasks they have to perform. ओके। Yes. So the process is, as we can see that there is process over being written here. हम्म। uh, we develop the description for a category of job, and
classes and job of grade, and develop standard for each category by describing the key characteristic of those jobs in the category, matching the jobs to the category based on the similarity of the task. So Okay. basically, we firstly manage the description and the skills uh, that are being demanded by the recruiter, Okay. or employer for the according by virtue of the grade and by virtue of the job title is being present. And बेसिकली क्लासिफिकेशन मेथड जैसे बताना चाह रहे हैं, the classification define the value of job people, the teams with the written standards for the hierarchical classification जो हमने प्रिपेयर किया हुआ है. It also involves the matching of the specific job और उसकी लिस्ट ऑफ टास्क क्या है उसमें, वो हम कैसे कैसे लेबर जो हमें आई है रिक्रूटमेंट के लिए, उससे कैसे हम उसको देखेंगे कि भाई ये बंदा है, इसको ये काम आते हैं कि नहीं आते, और हमारे पैरामीटर्स क्या कहते हैं. यही आप बेसिकली डिफाइन करना चाह रहे हैं ना. देन प्रोसेस की बात yes sir, करें तो डेवलप डिस्क्रिप्शंस फॉर कैटेगरीज ऑफ जॉब एंड जॉब क्लासेस एंड जॉब ग्रेड्स. तो प्रोसेस है कि भाई हमने पहले जो क्लासिफिकेशन कर लिया है, इवैल्यूएशन जो हमने किया है कि क्या क्या कैटेगरीज हमें इनमें बनानी है. दूसरा, डेवलप द स्टैंडर्ड फॉर ईच कैटेगरी फॉर डिस्क्राइबिंग द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज जॉब इन द कैटेगरी. कि हम मान लो जैसे स्वीपर है, तो स्वीपर्स में आप जो है कुछ पोछा लगाने वाले होंगे, कुछ डस्टिंग वाले होंगे, तो हमने दो कैटेगरीज बना दी. लेकिन ब्रॉड कैटेगरी क्या है, हाउसकीपिंग. हाउसकीपिंग के अंदर ये 5 पॉइंट्स आ गए हमारे पास. कैटेगरी एक है लेकिन उसमें जॉब के रोल्स अलग हैं, तो हम उनमें से एक कैटेगरी के हिसाब से हम रिक्रूट करेंगे, फिर रोल्स असाइन कर देंगे. सिमिलरली मैच जॉब्स टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी ऑफ द टास्क. ठीक है. रिजल्ट्स क्या होगा, द जॉब क्लासेस आर क्लासिफाइड लाइक मैनेजरियल हो गया. तो मैनेजर्स देखो, मैनेजर्स हमने रिक्रूट कर लिया. हमने हमारे प्लांट के अंदर, अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो उसमें 5 मैनेजर्स हैं. पहला प्रोडक्शन का, दूसरा क्वालिटी का, तीसरा इंडस्ट्री का, आईटी जो होती है, एंड आप एक आपका वो मान लो जो ये मार्केटिंग का, और एक मान लो आपका एचआर मैनेजर. तो ऑल 5 आर मैनेजर्स, बट उनके जो टास्क हैं आर डिफरेंट. सिमिलरली yes, ऑफिसर क्लर्क्स हैं एंड देन जॉब्स आर असाइंड इन देयर क्लासिफाइड्स. ओके. yes. यस, कंटिन्यू. Moving on to the next method, that is point method. uh, the system start with the selection of job factor, ये क्वेश्चन construction आना of है, 100% पेपर में आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको. ये क्वेश्चन इसमें से जो आपके मेथड है ना इवेल्युएशन का, और इवेल्युएशन मेथड्स हैं जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो पूछना चाहे तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा. ओके. जी sir, जी sir. Moving on to the point method, the system start with the selection of job factor, बच्चे construction कोई of अगर degree for each. उसमें वेटिंग में हो तो उनको अलाउ कर देना, देख Yes. लेना एक बार. नहीं सर, कोई भी नहीं. ठीक. Moving on to the point method, the system starts with the selection of job factor, construction of degree for each factor, and assignment of points to each degree. So basically, the point method consists of uh, the division of the various job factors that we can see over here, that is based on skill, their effort, their responsibility, and other job conditions. And o- and by taking these in the context, we we further we further made a table of these degree according to their education and various other things. Like if we are taking a degree 1, the degree 1 uh, and uh, and those candidates and the individuals which are being offered the job of degree 1 will be of will be pass out from high school, and moving on to the degree 2, uh, those the candidates can be graduated
And moving on to the degree 3, the candidates would be post-graduated. Hmm. And so this is a uh, moving on. Different factors are selected for different jobs Hmm. with accompanying differences in degrees and points. The most popular number of factor is between 10 and 15. Hmm. So as I have as I have explained that these are the job factors, and uh, the degree of the job role is being divided over divided according to this. Yeah. And the degree of those job roles is being evaluated, and and besides this, the various points are also being allotted by देखो virtue of this method. बच्चों समझ में आया पॉइंट मेथड? पूछो जरा बच्चों से, समझ में आया उन्हें? अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन इट. समझ आया भाई किसी को? हेलो? ओके आप बताइए, चलो पढ़िए, प्रोसेस पढ़िए, एक बार मैं बता uh, दूंगा फिर भी. the process for point method is: a set of compensable factors are identified, assign points to these compensable factor based on the perceived importance to the job. So basically we firstly make a set and a table of these factors that we are wanting to observe in the candidate, like their skill, effort, mental effort, physical effort, and so on. And we basically uh, we mark them according to their points, their score, as they have performed or been performing in their role. Once this is done, on all compensable factor, evaluate the level of each of these factors are present in the job and assign points accordingly. Okay. The points of each factor are totaled to form a score for the job. So basically, हमें पता चल चुका है जैसे कि हम अलग अलग डिग्री को लेते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर जो जो सॉफ्ट स्किल्स आते हैं बेसिकली उनको लेके हम उनको मतलब उनको मार्क्स देते हैं या पॉइंट्स देते हैं, और फिर उन सब का टोटल करके हम एक हमें एक ऐसा वो मिलता है, कंक्लूजन मिलता है, जिसकी वजह से हम जान सकते हैं कि उस जॉब के लिए कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए उस बंदे के अंदर. Moving on to the result. So jobs are then grouped by total score and assigned to salary grade gates so that job with the highest points would have the highest pay. Okay. So जैसे कि हम जान सकते हैं जब हम सब कुछ इवेल्युएट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमें उसका स्कोर पता चलता है, तो उसी हिसाब से जिसका सबसे ज्यादा स्कोर होगा, तो हम समझ सकते हैं कि उसी कैंडिडेट के अंदर सबसे ज्यादा स्किल्स चाहिए, या फिर that is the जो भी most रिक्वायरमेंट है. suitable candidate, you can say. जी सर. और उसी के अकॉर्डिंगली हम उसको उतना ही पैसा देंगे, उसको उतना ही पे करेंगे जो भी होगा. ठीक. So this is an example for this for the point method. As we can see over here that the skills, effort, responsibility, and job conditions, and under them there is a hierarchy, that skills requiring education, skills requiring the experience, initiative, and ingenuity, and according to them the points are being allotted in various degrees, that is first, second, third, fourth, and fifth.
So this is a little example for the point method. हम्म Now moving on to the factor comparison method. हम्म This method is based on the assumption that all jobs contain certain common factor to determine the worth of the job. So this method is basically very similar to the point method, but their wages and pay scales are given on the basis of their soft skills. As uh, it is uh, as in the point method, we can see that the soft firstly we separate the skills and मतलब effort वगैरह, हम्म लेकिन और फिर उसके बाद हम इसको डिग्री में भी करते थे, काफी कुछ उसे ब्रेक करके देखते थे। तो हम्म मतलब एक एक तरीके से जो पॉइंट मेथड है ये फैक्टर कंपैरिजन मेथड का एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है। यस इसको ही मतलब थोड़ा वास्ट करके थोड़ा खोल के वही हम्म रिप्रेजेंट करते हैं। हम्म और वहीं फैक्टर कंपैरिजन मेथड इसको थोड़ा छोटा करके है, जिसमें कि जो डिग्री वाला जो भी हमारा रोल है वो नहीं होता है। हम्म सीधा हम जो भी कैंडिडेट चाहिए होगा उसके उसको जो भी इसके अंदर जो भी हमें स्किल चाहिए उन्हीं में हम सीधा उनको पॉइंट्स अलॉट करके वही हम उसको कैलकुलेट वगैरह कर लेंगे। गुड सो जैसा कि हम देख सकते हैं, हम्म these job factor may differ in degree to which they are present in different job, typically the number of compensable factor। and इसके अंदर जो मतलब कि इस- जो भी फैक्टर्स होते हैं हमारे जिनके ऊपर हम जज करते हैं किसी भी रोल के लिए किसी भी कैंडिडेट को, वो भी काफी कम होते हैं, काफी हम्म सिलेक्टिव होते हैं। So the process for the factor comparison method is select the set of benchmark jobs, जो भी हम्म मतलब हमारी जो सबसे मैंडेटरी जो भी है क्वालिटीज चाहिए होंगी वो हम मतलब उनको सेट कर लेंगे। हम्म एंड रैंक द बेंचमार्क जॉब्स ऑन बेसिस ऑफ ईच कंपनसेबल फैक्टर। और उसी जॉब को जो भी हमारी जॉब है हम उसके जो भी फैक्टर्स चाहिए होंगे उस हिसाब से उसको अलॉट कर लेंगे या फिर उसको सेट कर लेंगे। फॉर ईच हम्म बेंचमार्क जॉब एलोकेट देखो मार्केट यहाँ पे पे बार बार अक्रॉस। ये टर्म रिपीट हो रही है, दैट इज कंपेंसेबल फैक्टर्स। कंपेंसेबल जी सर। फैक्टर्स क्या है? अभी कंपेंसेशन भी हम पढ़ के हटे हैं। कंपेंसेशन फैक्टर्स मींस जो जो काम उस जॉब रोल में है और जिनको हम कंपेंसेशन दे सकते हैं। मतलब कंपेंसेबल फैक्टर सबसे पहले आपके वर्किंग आवर्स आ गए। क्या कंपेंसेबल है? यस, दैट इज अ कंपेंसेबल फैक्टर। अगर आप किसी को जॉब के लिए रख रहे हो तो सबसे पहले तो वर्किंग आवर्स के हिसाब से कि वर्किंग आवर्स कितना है, तो दैट इज अ कंपेंसेबल फैक्टर। देन उस काम की टफनेस कितनी है, काम की जो क्वालिटी है, स्किल लेवल कितना है, दैट इज आल्सो ए कंपेंसेबल फैक्टर। ड्यूरेशन हो गया, योर टाइम हो गया, योर स्किल्स हो गया, योर ज्योग्राफिकल लोकेशन इज आल्सो इन कंपेंसेबल फैक्टर्स। हैजार्डियस कंडीशंस कैसी हैं, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, so all these are compensable factors. So ranking the benchmark jobs on the basis of each compensable factors, तो इसको तोड़ दे तो कंपेंसेबल फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए। बेंचमार्क का मतलब है, मैंने इसको बेंचमार्क जब मैंने पढ़ाया था आपको तो मैंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल मार्केट की बात करूं तो हर एक मोबाइल कंपनी टेक एप्पल एज अ बेंचमार्क, क्योंकि एप्पल अपने जो क्वालिटी जो रखेता है बना के वो कोई नहीं रख पाता। वो इतना हाई स्टैंडर्ड मेंटेन रखता है और उसके लिए वो एक लग्जरी ब्रांड है, तो हर कोई उससे कंपेयर करता है, तो दे बेंचमार्क देयर प्रोडक्ट्स विद द एप्पल। सिमिलरली अगर मैं कार की बात करूं, सो रोल्स रॉयस इज अ बेंचमार्क फॉर अदर कंपनीज बिकॉज दे मेक द कार्स विद सच ए क्राफ्टमैनशिप कि बिल्कुल फुल डिटेलिंग में वो बनाते हैं। राइट? जी सर। यस, आगे पढ़िए, उसमें दूसरा पॉइंट क्या था, तीसरा? For each benchmark job, allocate market pay across the compensable factor। हम्म जैसे कि हम देख सकते हैं जो भी मतलब हमारी जॉब होगी उसी उसको लेके हम जो भी मार्केट के अंदर प्राइस चल रहा होगा और जो भी मतलब कि स्किल्स वगैरह जो भी हमने मतलब कि जो भी कंपनसेबल फैक्टर्स को देखते हुए हम उसका पे एक फिक्स करेंगे। डेली वेज वर्क जैसे कि डेली वेज हो गया या फिर जो भी उसका सैलरी वगैरह होगा वो हम उसको फिक्स करेंगे। डिटरमाइन द पे फॉर ईच जॉब बाय एडिंग अप द पे फ्रॉम ईच कंपनसेबल फैक्टर। तो हम्म बेसिकली हम जो भी
जो भी फैक्टर लेंगे, जैसे कि हमारा बताया था सर ने अभी, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, या फिजिकल एफर्ट हो गया, मेंटल एफर्ट हो गया, उसके स्किल हो गए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो जितना जिस जॉब के लिए इन क्वालिटीज की मांग होगी, उसी हिसाब से हम उसका पे स्केल होगा, वही हम उसको बना के देंगे। तो गुड। तो उसके बाद हम जैसे जब सब कुछ एवेल्युएट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम एक हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला आ गया है, जैसे कि देख सकते हैं हम, पे रेंज बेसिकली पे फ्रॉम स्किल, पे फ्रॉम एफर्ट, जो भी उसका एफर्ट लगा है, पे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड पे फ्रॉम वर्किंग कंडीशन। तो वी कैन सी दैट skill, effort, responsibility, working condition, these all are compensable factor, and the salary of the job role is being fixed by virtue of these factors. हम्म। Now moving on to the conclusion. So a job evaluation scheme should be chosen cautiously. हम्म। It should be devised and administered administered on the basis of employment market. जैसे कि हम देख सकते हैं, जॉब एम्प्लॉयमेंट काफी मेजर रोल प्ले करता है किसी भी फर्म के अंदर। मतलब जैसे कि हम्म। हमें जो भी मैन पावर चाहिए उसको इवेल्युएट करने के लिए, हम्म। और इसको काफी ज्यादा मद्देनजर रखते हुए हमें इसे ध्यान करना चाहिए। और जो भी मार्केट के अंदर भी देखना चाहिए, जो भी जॉब रोल मतलब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना किसको दे रही है, मतलब ये सारी चीजें इवेल्युएट करना चाहिए on the basis of employment market and demand for labor, bargaining power of the parties and job conditions. हम्म। सो बेसिकली जैसे कि अब ये नहीं हो सकता, जैसे कि हमने एक जॉब इवेल्युएशन का, जैसे कि हमने कोई बेंचमार्क सेट कर दिया कि मतलब इसके अंदर इतनी ही होंगी। जैसे कि मार्केट भी अप डाउन होता रहता है, आज के लिए ज़माने में महंगाई बढ़ रही है, तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ता है, मतलब लेबर की, कंपनी को अपना पैसा भी बचाना है, और जिस हिसाब से हम लेबर की जो भी डिमांड हो सकती है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं कंपनी के डिमांड के हिसाब से, हम्म। और बार्गेनिंग वगैरह भी करनी होती है, और जॉब कंडीशंस भी देखनी पड़ती है, काफ़ी सारी चीज़ देखनी पड़ती Okay. है। तो ये थी सिंपल सी पीपीटी से। Okay. So that's all. जी सर। Yes. Yes, students. Yes, sir. How was the PPT? Was he able to बढ़िया। explain? Okay. So अभी कुछ बच्चे हैं जिनकी PPTs रहती हैं. So I'm announcing their names. Your Jainis तो अब देगा नहीं. And जितेंद्र राणा, कौशल कुमार. जितेंद्र है? Yes, Jitendra. Tomorrow is your turn. Okay. जी सर, जी सर। You will be giving on HR planning and forecasting. Ask बिल्कुल सर, हाँ ask सर, याद Kaushal है। Kumar. Ask Kaushal Kumar if he would like to join you. Then ओके सर। forward the message to Nandini also. Then day after tomorrow, that Prince and Rahul, roll number 32. And Rahul Singh 34. Rakhi is not coming. What happened to Rakhi? सर क्या बोला सर आपने, रिपीट करना? सर शी इज आउट ऑफ स्टेशन राइट नाउ। So out of station तो आप भी हो. अगर जो कॉलेज नहीं आ रहा है, all are out of station. जी सर। इंटरनेट कनेक्टिविटी हर जगह है, फिर भी आर नॉट एबल टू टेक क्लासेस. सर आपने नाम लिया सर, किस लिए? Rahul, your PPT. I'm asking that we stay prepared for you, your PPT, Yes. and ask Prince if he is willing to join you. सर मेरी तो उस पे थी ना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे। Yes, yes. Dispute resolution. हाँ तो So that is a very dynamic topic है ना, very good topic, बहुत अच्छा topic है dispute resolution. बहुत बहुत अच्छा है, इस पे आपको explain करने में और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा.
Okay. Then you will come to know the different strategies or legislation by the government of India to protect the rights of the labor. ठीक है, और कैसे सर लड़ाई झगड़े। मैंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे किया ना, इसमें इंडस्ट्री के ऊपर जो क्या क्या होता है, जो एक्ट मैंने वैक्ट नहीं किए। जो मैंने पढ़ाया नहीं, कोई बात नहीं, जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना, ठीक है सर। जैसा मैंने पढ़ाया है आपको जैसा अच्छा लगे, यू हैव टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, ठीक है ना। जो कंटेंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैंने मेथड पढ़ाते हैं आपको, कलेक्टिव बार्गेनिंग, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, फिर जॉइंट कमेटीज, मैंने पढ़ाया नहीं आपको, ये नहीं पढ़ा पढ़ाया है ना। सर। मैंने आपको पीपीटी भी दी है, आप चाहो तो वो उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेरी गुड पीपीटी, ठीक है। और जरूरी नहीं है आपको लॉस लाने हैं, वो तो मैंने आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है कि हाँ इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। देखो इंजीनियरिंग को कभी कभी भी ना थ्योरेटिकल पढ़ोगे ना तो वो एक बर्डन की तरह है, वो आपको एकदम बर्डन लगेगा, थ्योरी नहीं है। इंजीनियरिंग इज नॉट थ्योरी। देखो बहुत सारे सब्जेक्ट्स और बहुत सारी जो ये ब्रांचेस है ना इंजीनियरिंग की, ये क्या है ना, ये पहले लिखे गए हैं फिर पढ़ाए गए हैं। लेकिन इंजीनियरिंग क्या है, ये पहले किया गया है देन लिखा गया है। देखो स्टीम इंजन पहले बन गया फिर पढ़ रहे हैं हम, पहले हमने ऐसा तो नहीं है कि पहले लिख दिया फिर उसको हमने बनाया है, पहले बनाए फिर हमने पढ़ा है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंजीनियरिंग कि ये चीजें पहले ही प्रूव्ड है, तो आप इनको कैसे और आगे पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे इसमें आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, कैसे इनमें आप चेंज ला सकते हैं, जब भी तो आपको पढ़ाया जा रहा है बेसिक्स। व्हाट इज द नीड फॉर टीचिंग यू द बेसिक्स, आपको सीधा ना पढ़ाते गाड़ी कैसे बनाते हैं, लेकिन आपको स्ट्रेंथ यस ऑफ सर। मटेरियल भी पढ़ाते हैं हम, आपको हम जो है डायनेमिक्स ऑफ मशीन पढ़ाते हैं हम, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं, एंड नाउ यू आर स्टडीइंग द पावर प्लांट इंजीनियरिंग। तो बेसिक कैसे प्रोसेस हो रहा है, रैंकिन साइकिल कैसे काम कर रही है, ऑल दीज थिंग्स। तो जब तक आप क्रक्स में नहीं जाओगे, कोर आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे, हाउ विल एनालाइज द बिगर प्रोसेस दैट आर बीइंग डन ऑन द बेसिस साइकिल, ठीक है। यस आप सर। पीपी इसमें भी रिवीजन करते रहिए। एंड आपका कुछ आइडिया सर लगा मतलब एग्जाम वगैरह का कब है? एग्जाम का तो सर बताया नहीं है सर, दिसंबर के फर्स्ट एंड में होता है, ओके। दिसंबर के एंड में होती है। और व्हाट अबाउट योर प्रैक्टिकल्स? प्रैक्टिकल सर दिसंबर से स्टार्ट होगा ना, फर्स्ट या हम्म सेकंड वीक में प्रैक्टिकल स्टार्ट हम्म। हुआ था। अच्छा कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था, एक गौरव है, गौरव, उसको भी बोल देना, उसकी पीपीटी पता रहती है। नहीं सर, मतलब मेरी जो टर्न है कल है कि परसों है? तो जितेंद्र कल है किधर आपकी, कल है ना रोल नंबर 23। आज हिमांशु ने दिया है, जैनेश दे नहीं रहा है, तो नेक्स्ट कम्स योर जितेंद्र राणा रोल नंबर 23, एंड जितेंद्र राणा रोल नंबर 23 एंड कौशल कुमार कल है आपकी। नंदिनी की है उसके बाद, फिर उसके बाद प्रिंस, राहुल और आपकी है, थर्ड आपकी है, ठीक मतलब है। सर परसों है, कल नहीं आप है? परसों है, अगर ये नंदिनी कल देती है तो परसों है, तो आप ठीक मान है। के चलो परसों ही आप दे दो, क्योंकि अगर कल ठीक है। जितेंद्र देगा परसों नंदिनी नहीं देती है तो फिर आप दे देना। ठीक है। लेकिन अब हम डिले नहीं करेंगे इस प्रोसेस को, ये कंटिन्यूशन में हम चलाते रहेंगे, ठीक है। और पीपीटीज अच्छी ठीक है बनाओ, ओके, यस सर। क्योंकि दे विल हेल्प यू इन जीडी। जब आप अपने इंटरव्यू राउंड के लिए जाओगे जीडी ग्रुप डिस्कशंस में, तो आपको वहां बोलने के लिए कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव गॉन थ्रू दैट प्रोसेस कि पीपीटी से आपको कैसे एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। डोंट टेक दिस प्रोसेस लाइटली, ये देखने में पीपीटी देना है कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्किल्स डेवलप करता है आपके अंदर, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या है, पूछ सकते हैं, वी हैव टाइम। अटेंडेंस भी तो लेनी है आपकी, यस, सर अटेंडेंस तो मैं भूल ही जाता हूँ। सर पहले क्लास की लगा देना सर, पिछली वाली इसलिए का लगा नहीं दो क्या? हजार 2 बजे रोल वाली नंबर, सर, मेरा माइक ऑफ। माइक ऑन नहीं था। हाँ, राहुल रोल नंबर 32 सर। ओके। सर 2-3 दिन से तो ऐसे हो रहा है, रोल नंबर आता है तो क्लास एंड हो जाती है। अरे तुम रिप्लाई तो करते नहीं हो, मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता अटेंडेंस का। अटेंडेंस रिप्लाई इतना सर, बड़ी चीज नहीं है रिप्लाई यार। भी कर रहा था। ओके। बड़ी चीज नहीं है सर, वो रोल पता है, नंबर 2, लेकिन मैंने वो भी भेज दिया था सर आपको रोल नंबर 2, स्क्रीनशॉट। रोल नंबर 2 एब्सेंट, अभिषेक, ये आकाश रोल नंबर 3, आकाश रोल नंबर 3 एब्सेंट,
अंकित, रोल नंबर 6 अंकित। आशीष, रोल नंबर 7 आशीष। प्रेजेंट सर। चंदन, रोल नंबर 8 चंदन। सर। चिराग, ये तो आता ही नहीं है। गौरव कुमार। हिमांशु 17। यस सर। रोल नंबर 18 Present, sir. 19 19 रोल नंबर 19 जैनिस कुमार, रोल नंबर 22। प्रेजेंट सर। रोल प्रेजेंट नंबर सर। रोल नंबर 23 जितेंद्र राणा। प्रेजेंट सर। कार्तिक, प्रेजेंट सर। ओके कार्तिक। कौशल, ये कार्तिक भी नहीं आ रहा, कौशल भी नहीं आता। ओके नंदनी। ये पवन, पवन भी नहीं आता, एक आध क्लास में आया है बस। प्रिंस सोहरा, ये भी नहीं आता। राहुल 32। यस सर। ओके राहुल चौधरी 33, ये भी नहीं आता। राहुल सिंह, राहुल सिंह, ये कल की क्लास में था राहुल। ओके राखी, रामदत्त, रोल नंबर 38 रामदत्त। रामदत्त नहीं आया, इज अ रेगुलर स्टूडेंट। रौनक, रौनक। शेखर, प्रेजेंट सर। ओके ऋषभ, ऋषभ। सर पीपीई की भी लगा देना, वो दोपहर वाली देख लेना अगर नहीं लगा। आपका मार्क नहीं हुआ क्या पीपी? सर पीपीई में 39 के बाद क्लास एंड हो गई थी सर, मेरा 41 है ओके रोल नंबर। ओके ओके और सर मेरा भी लगा देना सर 32 का। 32 ठीक है, ठीक है। ओके। Okay, so thank you very much for joining. Okay, so come prepared with your PPTs. रोल नंबर 19 वो अनम्यूट नहीं हो रहा था। Roll number 19, roll number Yes. 19 हितेश। हो गया आपका, हो गया, हो गया आपका। ओके सर। Okay, so thank you very much.